Hey guys, this is Aman Mittal welcoming you all to Daily News Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today the date is 29th of May 2020 and we shall be seeing all the important articles that an aspirant must go through from the exam's perspective. आज near about 7 articles है हमारे पास from the Hindu and we have selected one article from the Indian Express. Coming on to the front page of the Hindu, there is news with respect to the India-China border tensions. Working with China to resolve LAC issue peacefully, says MEA. So there is a good news about the ongoing tensions that both the Indian and the Chinese side are engaged with each other through diplomatic and the military channels. And according to the MEA, India is committed to the objective of maintenance of peace and tranquility in the border areas with China, and the resolution of the issue between India and China would be on the basis of the 5 agreements that have been signed between both the countries since 1993. और इंडिया ने साथ में ये भी कहा है कि वो बॉर्डर इंफ्रा डेवलपमेंट का काम नहीं रोकेगी, तो जो भी रेजोल्यूशन निकाला जाएगा दैट विल डेफिनेटली नॉट स्टॉप द ऑनगोइंग इंफ्रा मॉडर्नाइजेशन वर्क in the border areas under the program Bharat Mala, wherein the government has decided to complete 61 strategic roads by the end of 2022. तो ये एक बहुत छोटी सी अपडेट है जिसको आप एक क्विक रीड दे सकते हैं and to study in detail about the entire issue you can check out the link in the description box below. Moving on to the next article, एक्सपोर्ट ब्लॉक्स. सो दिस आर्टिकल इज विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड डेटा फॉर अप्रैल. ये हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मेंस में ये हमें एनालाइज करने में हेल्प करेगा कि इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, स्पेशली इन द एक्सपोर्ट सेक्टर ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड. सो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया के वो 60% कोलैप्स हो गए हैं अप्रैल में एंड इंपोर्ट्स स्लाइटली कम हुए हैं. द ओनली टू सेक्टर्स टू शो द पॉजिटिव ग्रोथ अमंग द 30 बिगेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स आर आयरन ओर एंड फार्मास्यूटिकल्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दैट आयरन ओर वाज इन द पॉजिटिव टेरिटरी इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन. And in this article, there is mention of a scheme to help the exporters and importers, wherein the RBI has extended a special 15,000 crore liquidity facility for the Export Import Bank of India by providing them the much required liquidity. And during the lockdown period, employment intensive sectors such as textiles, garment exports, they even saw a fall of about 91% in April. ये sectors already downfall देख रहे थे फ्रॉम जनवरी, जब फर्स्ट क्वार्टर में एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स ने 16% का फॉल रजिस्टर किया था और अप्रैल में अब ये 91% गिर गए हैं. एक्सपोर्ट सेक्टर फर्दर फॉल देख सकता है आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ द न्यू बैरियर्स पुट अप बाय द कंट्री ऑन द ट्रेड, एज देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लुक इनवर्ड फॉर द एसेंशियल सप्लाईज. तो जो फूड सप्लाईज और मेडिकल सप्लाईज हैं ये खासकर एक डाउनफॉल विटनेस कर सकते हैं. एंड विद रिस्पेक्ट टू द अदर exports due to the disruption of the global supply chains and again due to the tendency of the countries to look inward, they shall also remain muted in the coming times. तो ये एक बहुत छोटा सा आर्टिकल है जो आपको ब्रीफ में आइडिया देता है अबाउट द एक्सपोर्ट सेक्टर ऑफ इंडिया. तो ये एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए ताकि आपको पोटेंशियल एरियाज पता हो इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर्स के along with some of the external factors that impact India's export sector. Now let us move on to our next article, a brewing storm. So recently ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के 2 ट्वीट्स को फैक्चुअली इनएक्यूरेट बोल दिया, जिसके कारण नाउ डोनाल्ड ट्रंप इज प्लानिंग टू रेगुलेट नॉट ओनली ट्विटर बट एंटायर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग द फेसबुक एंड गूगल. So here the main issue is not about the Twitter or the Donald Trump, but it is about the hegemony of the social media platforms or the tech giants. So these tech giants have become too big in size that no level playing field can ever be ensured as they rule the entire field today. So this issue of splitting the tech giants is in news since a long time. और ये यूएस के सेनेटर्स ने रिपीटेडली इशू को हाईलाइट किया है दैट दे नाउ हैव स्टार्टेड टू एक्ट एज प्रॉक्सी फॉर द नेशनल गवर्नमेंट्स. कल ही हमने देखा था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एंटी ट्रस्ट एलिगेशंस लगाए हैं ऑन द गूगल एज इट इज यूजिंग इट्स एडवांटेजियस पोजीशन टू अनफेयरली प्रमोट इट्स ऐप दैट इज द गूगल पे. तो इस टाइप के जो इश्यूज हैं दैट इज स्टिफलिंग द कंपटीशन, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टेक जायंट से रिलेटेड नहीं है. These are related with all the tech giants. अगर हम Facebook की बात करें तो उसके साथ भी कैम्ब्रिज एनालिटिका केस हुआ था. Then Facebook is also trying to bring in the currency that is Libra.
अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो इसके रिगार्डिंग भी कंसर्न्स हैं यूएस में कि दिस करेंसी कैन टेक ओवर द नेशनल करेंसी और द सॉवरेन करेंसी। सिमिलरली इफ यू talk about the wealth, then there is substantial disparities between the distribution of the wealth, wherein on the one side there is huge accumulation of the wealth, so much so that even if the founder of Amazon loses $7 billion in a day, then he fears not about this money but about coming second in the position after the Bill Gates, be it data, technology, wealth and user base. These tech giants have enormous influence on each and everything mentioned out here, and this makes very easy for these tech giants to not only influence the behavior of the consumer but also dictate the policies of the national governments, जो कि clearly visible है in the case of the data localization. So extensive lobbying करी जाती है by these tech giants in the areas or the fields from where they can maximize their profits further. और अब जो और ज्यादा grave emerging issues सामने आ रहे हैं, they are with respect to the fake news and the involvement of these tech giants into the politics और the elections. यूएस में already accusations लगे थे with respect to the political rigging or the election rigging in 2016, and again when the elections are near, now politicians in the US are trying to regulate such tech giants. तो इस issue को भी read करने की कोशिश करें. Please read it around the topic that is splitting the tech giants. For now we will leave this topic here, and if need be we will extend it further and then we shall be dealing it in detail. Let us move on to the next article now. फॉर अ रीसेट इन इंडिया नेपाल रिलेशंस, ये आर्टिकल मैंने सेलेक्ट किया है आप लोगों के क्विक रिवीजन के लिए. अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल और आप इसे एक क्विक रीड दे सकते हैं सो एज टू रिवाइज योर एंटायर काला पानी इशू. और एज अगर आपको काला पानी इशू के बारे में ज्यादा क्लैरिटी नहीं है देन डेफिनेटली यू कैन चेक आउट आवर लिंक मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. ड्रोन्स डिप्लॉयड फॉर कंट्रोलिंग लोकस्ट. तो इस आर्टिकल से सिर्फ आपको एक पॉइंट मिलता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट और एलिमिनेट द लोकस्ट अटैक्स. सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट द इंडियन गवर्नमेंट इज मेकिंग यूज ऑफ ड्रोन्स फॉर द एरियल स्प्रे ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स दैट इज द मेलेथियन. और एक पॉइंट मैं यहाँ पे और ऐड कर दूं कि ड्रोन्स के साथ इंडिया ने स्पेशलाइज्ड इंसेक्टिसाइड स्प्रेयर्स के ऑर्डर प्लेस करे हैं विद द यूके, जो नियर अबाउट 60 सच स्प्रेयर्स इंडिया को प्रोवाइड करेगा. नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट आर्टिकल. लॉकडाउन हिट्स एक्सेस टू सैनिटरी हाइजीन. हम रिपीटेडली देखते आ रहे हैं कि कोरोना वायरस का इंपैक्ट ऑन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी. तो हमने लॉकडाउन का इंपैक्ट ऑलरेडी देखा हुआ है ऑन द क्राइम्स related to the women, especially domestic violence. Then we saw the impact of lockdown on the persons with disabilities, and today in this article we shall be seeing the impact of lockdown on the health and hygiene of women. तो एक recent survey conduct हुआ था according to which lockdown has adversely affected the menstrual hygiene of women. तो जो NGOs पहले sanitary pads provide किया करते थे women को, वो अब उतना effectively provide नहीं कर पा रहे हैं because उनके पास भी supplies नहीं आ रही है और वो भी एग्जिस्टिंग सप्लाईज को आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस पुट डाउन बाय द लॉकडाउन. सिमिलरली स्कूल गोइंग गर्ल्स जिनको सैनिटरी पैड्स मिल जाया करते थे स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूल से, क्योंकि अभी स्कूल्स बंद हैं तो वो भी इंश्योर नहीं कर पा रही हैं सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन. तो इस आर्टिकल से बस आपको एक ही पॉइंट मिलता है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपको एज देंगे whenever you will write or speak about the lockdown. Now let's move on to the next article. China passes controversial Hong Kong law. So finally China has passed the controversial Hong Kong security law. ये और ये entire issue हमने cover किया हुआ है अपने Cracknets initiative में. आप उस issue को update कर सकते हैं with this article. And there is one more point which we have not covered in our Cracknets. There is a mention of that law could also block foreign judges from sitting on the national security cases. तो ये हमने Cracknets में cover नहीं करा था और ये पॉइंट आप अंडर द कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी लॉ उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं. देयर इज वन मोर अपडेट विद रिस्पेक्ट टू द यूएस पासिंग द Uyghur Rights Bill. So Uyghur are basically Muslims that mostly are located in the western part of the China, that is the Xinjiang region.
और जिन चाइनीज ऑफिशियल्स ने एट्रोसिटीज कंडक्ट करी थी इन उइगुर मुस्लिम्स पे, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने का एक बिल पास किया जा रहा है बाय द यूएस गवर्नमेंट, which again is an update with respect to the further deterioration of the ties between US and China. So this article being the last article from the Hindu, we shall now see our final article of the Indian Express. Institutional deliveries dip in Chhattisgarh and Jharkhand. So this again is an impact of lockdown and coronavirus on the sections of the Indian society. And here the section mentioned is again the women. तो हमने वेमेन से रिलेटेड क्राइम बढ़ते हुए देख लिया है, हमने उनकी हेल्थ एंड हाइजीन को डिटेरियोरेट होते हुए देख लिया है, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज दैट हैव सीन अ डिप ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो इससे सिर्फ वुमेन नहीं इंपैक्ट होंगी, बट इससे चिल्ड्रन भी इफेक्ट होंगे। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 4 इंडिया में 2015-16 में नियर अबाउट 79% थी, विच इज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट फ्रॉम 2005 एंड 6 जब ये नियर अबाउट 39% थी। लेकिन अगर हम ये डेटा की बात करें जो इस आर्टिकल में मेंशन्ड है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इन झारखंड जो कि 52,000 लिस्टेड थी इन द मंथ ऑफ मई, उसमें से सिर्फ 6% डिलीवरीज इंस्टीट्यूशनल रही, बाकी सारी डिलीवरीज नॉन इंस्टीट्यूशनल थी। तीन मेजर रीजंस यहाँ पे मेंशन्ड है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ डिप इन द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। द फर्स्ट रीजन इज दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ऑफ। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, इसीलिए लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं हॉस्पिटल्स को या स्टैंडर्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज को। सेकेंड रीजन इज द फियर ऑफ हॉस्पिटल्स, जो लोगों के अंदर है विद रिस्पेक्ट टू द कोरोना वायरस। तो वो हॉस्पिटल जानबूझ के भी एक्सेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि हमें कोरोना ना हो जाए या होने वाले बच्चे को उसका इफेक्ट ना हो। एंड द थर्ड रीजन इज दैट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैपन एट स्मॉल एंड प्राइवेट नर्सिंग होम्स, जो कि लॉकडाउन के कारण बंद है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो हैं दे आर मोस्टली डन बाय द स्मॉल प्राइवेट नर्सिंग होम्स, एंड यू कैन यूज दिस पॉइंट whenever you are asked to write or speak about prevalence of the sex determination in India despite there being a stringent statute that is the PCPNDT Act of 1994, क्यों फीमेल फीटिसाइड इंडिया में आज भी देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो हैं वो क्योंकि स्मॉल और प्राइवेट नर्सिंग होम्स में होती हैं, तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन करवाना रिलेटिवली इजी होता है बिकॉज सच प्राइवेट नर्सिंग होम्स आर नॉट ऑलवेज रेगुलेटेड नॉट दे आर रजिस्टर्ड। तो इस पॉइंट को आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में कैसे यूज करेंगे आपको पता है, और आप इसको फीमेल फीटिसाइड में कैसे यूज करेंगे वो भी आपको अब आइडिया मिल गया है। सो दिस आर्टिकल बीइंग द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे गाइस, वी शैल रैप अप डेली न्यूज़ नट्स ऑफ द डे। प्लीज check out all the links mentioned in the description box below. Post your suggestions, queries, doubts in the comment section below. Keep learning guys. Thank you.